the answer. That is the rank is 3. रैंक 2 आएगा इसमें. ओके, सेकंड वाला में भी डाउट है आपका? यस सर. यस सर हेलो सर. हाँ बोलो सर. इसके सेकंड जो हाँ इसका सर सेकंड वाले का वो आंसर इक्वेशन बताओ ना सर. इक्वेशन का आंसर कितना आ रहा है? क्वेश्चन तो दे दिया, आंसर दे रहे हैं. टू, that is initially यहाँ पर 1 था ना, तो ये 2 minus plus 5, that is 7. 7. यस, R2 का वैल्यू 1 है और R1 का वैल्यू -1 है ना. हाँ सर. हाँ यस सर. So 2 plus 5 is 7 ना. Okay, and now the next term is here. 9 के लिए भी करना है सेम, वैसे ही हम लोग करेंगे. तो 2 times of R3 minus 9 times of R1. तो यहाँ पर ये 18 minus 18 0 हो जाएगा. 3 into 2 6, 9 into 3 27, 6 minus 27 is I guess minus 21. And here Yes sir. the number is 5. So ये आएगा -10 minus 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 plus हो जाएगा. So that will be the plus number. Sorry, -1. -1. Yes sir. And after getting that, you have to make a 0 here by rearranging the term or by making a lower number. You will get the answer. तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर कोई भी नॉन 0 आएगा. तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा. यहाँ पर समझो कोई भी वैल्यू है, बट RHS में 0 होने की वजह से you get initially z equal to 0. By putting the values of z, you get y equal to 0, and after that you get x equal to 0. और मैं आपका स्टेप्स बता देता हूँ. यहाँ पर जो स्टेप्स है, the steps will become 19 times of R3 minus 21 times of R2. ये स्टेप लिखने के बाद आपको खाली यही पे, हाँ ये स्टेप लिखने के बाद आपको खाली यहाँ पे 0 लिखना है. यहाँ पर आ जाएगा -19 minus 21 into 7. Whatever the answer it is, that answer is only here, which is getting 0, x0, y0 and z0. Okay, then directly it is giving answer to us. It's a unique solution क्योंकि by default इसका तीनों रैंक बाहर है, इसका unique solution है. Okay sir, thank you. Welcome.
We are waiting for 2 to 3 minutes. Some of the students are still joining. Okay, good morning everyone. Let's restart. I hope everyone is joined. So we can start it right now. Today we are starting with a partial fraction. That is a topic which you already learned in a 12th standard. The name is okay. The name today we are starting with a name is called partial fraction. Initially, the first type is f of x whole upon x minus a, x minus b, x minus c. Then we can just split it into a upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c. Second type is f of x whole upon x minus a into x minus b the whole square. In this type of the sum, initially we just write a upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus b the whole square. And the third type is f of x whole upon x minus a into x square plus or minus b. यहाँ पर ये माइनस लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एग्जामिनेशन पे यहाँ पर प्लस है तो आपको सामने प्लस लिखना है so it doesn't give a much effect माइनस लिखो या प्लस लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो सिर्फ आपका खाली फॉर्मेशन याद रखना है ओके तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा a अपॉन x माइनस a
plus bx plus c whole upon x square plus b. Now remember the type. If is without power, like first term, that is x minus sorry x plus a, x plus b, x plus c, जिसमें पावर नहीं है, तो जो विदाउट पावर है उसको डायरेक्टली एक ही बार लिख देते हैं हम लोग, दैट इज a अपॉन x माइनस a, b upon x minus b, and c upon x minus c. That directly we are writing this particular part. Okay, that is the first part. Second type is whenever we have a whole square or whole cube like term. इफ वी हैव अ स्क्वायर और क्यूब देन वो टर्म उतनी बार लिखना है, जैसे कि यहाँ पर x प्लस बी का स्क्वायर था तो 2 बार लिखा, पहली बार विदाउट स्क्वायर, दूसरी बार विद स्क्वायर. एंड वी हैव अ पर्टिकुलर टर्म x स्क्वायर, देन वो x का हम लोग स्क्वायर करके लिखेंगे. तो वो टाइम पर हमने न्यूमरेटर में ये टर्म फिक्स रखा है. प्लीज राइट अ फॉर्मूला. हम लोग तीनों टाइप के दो तीन एक एक सम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, मतलब 3 से 4 सम सॉल्व करेंगे, सो दैट यू गेट द आइडिया. ये इसलिए करवा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन क्योंकि यूनिट नंबर 3 जो चैप्टर का नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर एक टाइप का सम होता है इनवर्स, जो फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा. और वो इनवर्स के अंदर आपको सॉल्व करने के लिए ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा. सो पार्शियल फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द लैप्लास सम, नॉट होल सम. रिमेंबर, वो पूरा सम नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द सम. और ये आपको ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में था. 11th स्टैंडर्ड में ये वाला चैप्टर ही था, पार्शियल फ्रैक्शन करके सबको था, साइंस और कॉमर्स दोनों लोगों को ये था, और शायद आपको अभी याद ना हो, इसके लिए हम लोग इसको रिवीजन करें. सो प्लीज कॉपी द फॉर्मूला फर्स्ट, देन वी कैन गो अहेड. सर नो सर, बात सर एक सेकंड. ठीक है, नो प्रॉब्लम, लिख लो. सर डन. Okay, we are going to the first question. Assume the question is x plus 3 whole upon x cube minus 6x square plus 11x minus 6. अब सबको ये डिनोमिनेटर का पार्शियल सॉरी सिंथेटिक डिवीजन सबको पता है. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ऐसा सिंथेटिक डिवीजन देखा था, एंड इवन ये हम लोग मैट्रिसेस में भी देखने वाले हैं. तो पहले 1 आएगा जिसकी वजह से इधर आता था -5, 1 into -5 is -5, 11 minus 5 is 6, 1 into 6 is 6, 6 minus 6 is 0. Let's try with a 2. Next number is, we get 1 2 are 2, we get -3, that is -6, and c. And finally this is 3, so 1 3s are 3, we get the answer c. So we get the three values 1 2 and 3. So ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, that is the first factor is x minus 1, second factor is x minus 2, and third factor is x minus 3. Since we get the three values 1 2 3 on here, so we just write down the x minus 1, x minus 2, and x minus 3, that is my three factor. यहाँ तक सबको समझ में आ गया. इसका हाफ पार्ट हम लोग ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में देखे थे, सिंथेटिक डिवीजन. आज हम लोग इसका थोड़ा आगे वाला पार्ट देखेंगे. पहले फैक्टर गिरा दिया, उसके बाद डायरेक्टली एज पर द फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कंसीडर x प्लस 3 होल अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. तो तीनों टर्म में किसी का भी पावर नहीं है और तीनों टर्म डायरेक्ट है. इसके लिए हम लोग इसे सिंपली लिख देंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3. जो भी टर्म यहाँ होगा बस उसी को हमें तीनों बार लिख देना है. हमारा मेन टारगेट होता है ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी फाइंड आउट करना. इसके लिए हम लोग ये डिनोमिनेटर को पहले सामने मल्टीप्लाई करेंगे. ये डिनोमिनेटर वाला टर्म
सामने हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप की लैंग्वेज में बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकालेंगे। लेकिन बेटर देखिए डिनोमिनेटर को हम सामने मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू a। अब ये पूरा डिनोमिनेटर जब इधर a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म न्यूमरेटर में है तो x माइनस वन कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास x माइनस 2 x माइनस 3 फिर प्लस b इंटू ये सेम पूरा टर्म जब इधर मल्टीप्लाई होगा b के साथ, ये डिनोमिनेटर जब पूरा इधर b के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x माइनस 1 x माइनस 3 एंड फाइनली प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2, क्योंकि वो टाइम पर ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? जब ये डिनोमिनेटर वाला टर्म इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी पहले x माइनस 1 निकल जाएगा तो ये बचेगा, सेकेंड टाइम पर x माइनस 2 निकल जाएगा तो ये दोनों बचेंगे, और थर्ड टाइम पर x माइनस 3 निकलेगा तो ये दोनों बचेंगे। Now next, to find a, b and c, the first step is put x equal to, तीन वैल्यू निकालने तो 3 बार पुट करना ही पड़ेगा। ना अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जो पहला टर्म था, मतलब हमें जो फैक्टर मिला था वो कौन से फैक्टर थे, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। सिंथेटिक डिवीजन से ये 3 मिला था, सिंथेटिक डिवीजन से ये 3 वैल्यू मिली थी, तो यही वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले पुट करेंगे x इक्वल टू 1, फिर पुट करेंगे x इक्वल टू 2, फिर पुट करेंगे x इक्वल टू 3। जो हमें फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से मिला था वही पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा 1 प्लस 3 is equal to a into 1 minus 2 1 minus 3 3 plus 1 4 minus 1 minus 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से 2 आ जाएगा, तो कैन राइट 2a equal to 4। फाइनली वी कैन राइट a equal to 2। सो इसके अकॉर्डिंगली मुझे ये a का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया, 2। क्लियर? ये पार्ट सबको समझा? यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा that after simplification we get answer that is a is equal to 2। ओके, जिसको नहीं समझा वो लोग वापस ध्यान दो। मैं क्या करूंगा, सेकंड जो वैल्यू था, मतलब कि हम लोग जब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तब हमें 3 वैल्यू मिला था 1 2 और 3, वही वैल्यू हमें ये पूरे इक्वेशन में पुट करना है। सर आपने पूरे में तो पुट ही नहीं किया, आपने तो सिर्फ आगे वाले में पुट किया। नहीं, मैंने यहाँ पर भी पुट किया। अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, एंड 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। इधर भी पुट किया 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब दोनों टर्म 0 हो गया तो इसके लिए सिर्फ इतना ही बचेगा। अभी हम लोग सेकंड नंबर उसी तरीके से x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, एंड 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर लिखेंगे b वाला टर्म, तो 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब ये पूरा c वाला टर्म भी 0 हो गया, तो इधर से बच गया माइनस b, तो 5 इक्वल टू माइनस b, सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट b इज इक्वल टू माइनस 5। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया। एंड फाइनली हम लोग 3 पुट करेंगे तो 3 इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू, ईयर पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0, मतलब पूरा 0, 3 माइनस 3 0 मतलब पूरा 0, और यहाँ पर आ जाएगा c के साथ 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1, तो फाइनली ये 2 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आएगा, तो c इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3। So we get finally c equal to 3. So we get values of a equal to 2, b equal to minus 5 and c equal to 3. That's it. क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया? बस उतना ही निकालना। उसके बाद फाइनली आंसर के अंदर a के जगह पर हम लोग 2 लिख देंगे, b के जगह पर हम लोग -5 लिख देंगे और c के जगह पर हम लोग 3 लिख देंगे। तो जो हमें आंसर मिलेगा बस वही आंसर लिख देना है एट द प्लेस ऑफ द a, b and c, that is your final answer. क्लियर?
पार्शियल फ्रैक्शन का ये वाला पार्ट समझ में आ गया? हाँ, नो डाउट इसके बाद आगे सॉल्व करना है, बट आगे सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक लैप्लास के फॉर्मूलास वगैरह सब पता होने चाहिए। मतलब यूनिट 3 जब हम करेंगे तब भी आपको वो सब पता होना चाहिए, और वो पता चल जाएगा। करंटली आपको बेसिक रिविजन पता होना चाहिए, वो है पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप जो हमने अभी किया। आई होप एवरीवन इज क्लियर। प्लीज कॉपी द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट सम कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट वाला करेंगे। सर ये x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री कहाँ से है, मतलब माइनस साइन कहाँ से है उसमें? फैक्टर आया था ना हमारे पास, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 1 है तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या बनेगा फैक्टर के लिए? x माइनस वन इक्वल टू 0 ना पहला फैक्टर। फिर इसको भी इस तरफ लेकर आएगा तो फिर x माइनस टू इक्वल टू 0, इसको भी इस तरफ लेकर आएगा तो x इक्वल टू 0, x माइनस थ्री इक्वल टू 0। ये तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 है, उसको लेफ्ट साइड पे लेके आना पड़ेगा ना फैक्टर निकालने के लिए। ओके सर, समझ आया। सर डन। ओके, सबका हो गया? ठीक है, चलो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम। Okay, I'm giving question to you. Just the question is 3x minus 4 upon x plus 1, x minus 1, x minus 2। क्वेश्चन में फैक्टर यहाँ पर पहले से दिया था, सेम क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो। पहला स्टेप आ जाएगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 2। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, जो तीन दिया था वही तीन मिल गया। अब ये डिनोमिनेटर को हम सामने हर एक इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा x माइनस वन एक्स माइनस 2 प्लस b के साथ x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 1 एक्स माइनस 2 प्लस c के साथ x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट थ्री वैल्यूज, तो पहला आ जाएगा पुट x इक्वल टू। अब यहाँ पर तो हमने फैक्टर नहीं निकाले थे,
चलो प्रीवियस में फैक्टर निकाला था तो आपको 3 वैल्यू पता थी, यहाँ पर तो हमने फैक्टर निकाले नहीं थे, लेकिन हम लोग फैक्टर निकाल सकते किस पे से, तो यहाँ से। पहला वैल्यू क्या था आपका x+1, तो उसको इक्वल टू 0 लेगा। अगर मैं x+1 इक्वल टू 0 ले लूंगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, तो पहला वैल्यू -1। सेकेंड इसके हिसाब से x-1, तो ले लो x-1 इक्वल टू 0। When you took x-1 equal to 0, what do you get? X equal to 1. And the third इसके हिसाब से x-2 equal to 0। अगर x-2 equal to 0 ले लोगे तो x equal to क्या आ जाएगा, 2. So you get the 3 values of substitution. Put these 3 values in the equation, you get answer of A, answer of B, and answer of C. Please try the sum and check out whether you get answer or not. Come on fast. Hmm? सर वो प्लस में तक वो नहीं समझे सर। क्या सर वो -2 प्लस वो नहीं समझे। अरे भाई इतना सिंपल है, x-2 इक्वल टू 0, तो ये -2 इक्वल टू के सामने चला जाएगा तो क्या आएगा, यस सर यस सर। कम ऑन गाइस, अभी टर्म मत बन जाओ, हर बार वही करना है। आपके डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही टर्म आप लोगों को लेना है, उसको इक्वल टू 0 ले लेना है। मतलब कि आपका फैक्टर के हिसाब से x+1 इक्वल टू 0 आएगा पहला, दूसरा आएगा x-1 इक्वल टू 0, तीसरा आएगा x-2 इक्वल टू 0। उसके हिसाब से आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। सबको एबीसी का वैल्यू मिला। -7/6 is the correct answer, first one.
Yes, the answer is correct. I hope everyone will be get how to solve the partial fraction sums of the first types. So should I start with the second type, everyone? You know the procedure now how to solve the sum, correct? Okay, let's start with the second type of the sum. In a second type, there is a square, or you can call it whole square. किसी का बाकी तो कॉपी कर लो, मैं 10-15 सेकंड के लिए रुका हूँ. If anyone wants to copy. Okay, let's start with the second questions. Okay, I'm starting with the second question. Please pay the attention. The first question is 1 upon s minus 4 into s plus 3 the whole square. Okay, so as per the question, हम लोग पहले इसको स्प्लिट करेंगे तो आएगा a upon s minus 4 plus b upon s plus 3 plus c upon s plus 4 the whole square. I hope you get this idea. यहाँ पर स्क्वायर था, इसके लिए हमें 2 बार लेना पड़ा. यहाँ पर स्क्वायर था, इसके लिए हमें 2 बार लेना पड़ा. सॉरी, एस प्लस 3 ही आएगा, मैंने गलती से 4 लिख दिया था. सॉरी. तो अगर स्क्वायर है तो 2 बार. उस तरीके से अगर यहाँ पर क्यूब होता तो एक टर्म एक्स्ट्रा आता था लाइक दिस, डी अपॉन एस प्लस 3 द होल क्यूब. मतलब कि जितना पावर है उतनी बार वो टर्म को लिखना पड़ेगा. Since here power is 2, we just write only for 2 times. Clear everyone? Now same steps, डिनोमिनेटर को सामने मल्टीप्लाई करो. तो पहला क्वेश्चन में s प्लस 4 एक बार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा s प्लस 3 का होल स्क्वायर. सेकेंड वाले में एक बार s प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा s माइनस 4 s प्लस 3. और थर्ड टाइम के अंदर s प्लस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा s माइनस 4. करेक्ट? यहाँ तक समझ में है सबको? नाउ सेम स्टेप्स, पहले इसके हिसाब से पहला जो स्टेप आ जाएगा दैट इज पुट s इक्वल टू 4 ले लेंगे इसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज s माइनस 4 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 4. इफ आई कैन पुट s इक्वल टू 4, आई गेट a 4 plus 3 7, so we get 7 square. Here 4 minus 4 0, तो पूरा टर्म 0, 4 minus 0 मतलब पूरा टर्म 0. तो we get finally a इक्वल टू 1 by 49. 7 का स्क्वायर 49 होता है, वो सामने जाके डिवाइड में आ गया. इधर मल्टीप्लिकेशन में था, सामने गया तो डिवाइड में, दैट इज 1 by 49. आई होप एवरीवन क्लियर टू हियर. नाउ सेकंड स्टेप, सेकंड इसके हिसाब से ले लेंगे, तो इसके हिसाब से आ जाएगा पुट s इक्वल टू -3. When we put -3 in the equation, we get 1 equal to -3 plus 3 0, मतलब ये पूरा टर्म 0. -3 plus 3 0 मतलब ये भी पूरा टर्म 0. यहाँ पर ए भी 0 हो रहा है, बी भी 0 हो रहा है. हर बार ऐसा नहीं होता था. प्रीवियस में पहले ए आता था, सेकंड वाले में बी और थर्ड वाले में सी. तो आपको ओरली पुट करके चेक करना है, जिधर 0 होता है उसको लिखना नहीं है. तो -3 plus 3 0, -3 plus 0 मतलब बी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे पहले सी मिलेगा. मतलब -3 -4 is -7. यू गेट सी इज इक्वल टू -1/7. हर बार हमें सेकेंड वैल्यू पुट करने पर बी मिलता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है. क्लियर एवरीवन? क्या तक सबको समझ में आ गया? करेक्ट. दिस इज एस नॉट 5. प्लीज रिमेंबर, ये जो भी लिखा है वो एस है, 5 नहीं है. ठीक है. फाइनली द लास्ट है इसके हिसाब से. तो अगर मैं इसके हिसाब से भी देखूँ तो भी वही आएगा -3. वो तो मैं निकाल चुका हूँ, क्योंकि अगर s प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 भी ले लेता हूँ मैं, तो वही आएगा इनडायरेक्टली s प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मींस s इक्वल टू -3. but we already find out the values of s equal to -3. so what we can do is we cannot be resubstitute -3. मतलब कि सेम वैल्यू दोबारा पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आंसर सेम ही आने वाला है. तो अभी क्या करेंगे, यू कैन पुट एनी रैंडम वैल्यू.
व्हेन यू डोंट हैव अ चॉइस, अगर हमारे पास चॉइस नहीं है तो कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करो। आई एम पुटिंग एस इक्वल टू 0 एक्सेप्ट दीज टू। जो वैल्यू एक बार पुट कर चुके हो उसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आप चाहो 1 पुट करो, आप चाहो -1 पुट करो, आप चाहो 2, -2, 3, -3 नहीं कर सकते क्योंकि है, 4 नहीं कर सकते क्योंकि है, यू कैन पुट -4 एनी अदर वैल्यू, इफ यू वांट यू कैन पुट 10 also. It's totally up to you whatever the value you want to substitute. The smaller value will give a faster answer, that's it, nothing else. So now here 1 value of a का वैल्यू कितना था, 1/49, 0 + 3, इसके जगह पर 0 है ना, तो 0 + 3 is 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस b जो नहीं पता है, 0 - 4 वो है -4, 0 + 3 that is 3, and finally c 0 - 4, तो 0 - 4 is basically -4, और c का वैल्यू यहाँ पर पहले से था -1/7, मतलब -7 लिख सकता हूँ उसको, 1 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो गया इसके लिए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। पहले ये टर्म को मैं इक्वल टू के सामने लेके जाऊंगा, तो पहले रीअरेंज कर देता हूँ। 9/49, जस्ट अ मोमेंट, so 1 equal to 9/49 minus 12b plus 4/7. Now I am taking this negative sign term minus 12b on the opposite side. So what we get here? Here we get 12b equal to 9/49 plus 4/7 minus 1. Can we took the LCM as a 49? Total LCM 49 ले सकते हैं हम लोग, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 4 is 28 minus 49, तो यहाँ पर हमारे पास था 12। What is 28 plus 9? 37. 28 plus 9 is 37. 37 minus 49 is -12. तो फाइनली कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा रहा हूँ, 12b is equal to -12 upon 49. 12 going to be cancelled. We get b equal to -1/49. Clear everyone? Once we get a, b and c, just put in the values of a, b, c. That's your final answer. सबको समझ में आया? Whenever we have a square, क्वेश्चन में जब भी स्क्वायर दिया था तो एज पर द सेकंड फॉर्मूला जो हमने लिखा था, इसमें यहाँ पर स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये c के बाद स्क्वायर मिलता है। तो सेम प्रोसेस यूज किया यहाँ पर, पहला टर्म एज इट इज जो विदाउट पावर था, स्क्वायर वाले के लिए हमने एक बार विदाउट स्क्वायर और एक बार हमने विद स्क्वायर ले लिया है। देन डिनोमिनेटर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पर पहले s - 4 कैंसिल होकर s + 3 स्क्वायर बचेगा, फिर s + 3 एक बार कैंसिल कर दिया तो s - 4 s + 3 बचेगा, s + 3 का होल स्क्वायर कैंसिल होकर s - 4 बचेगा। पुट s - 4 इक्वल टू 0 ले ले तो इसके हिसाब से s इक्वल टू 4 आएगा पहला, s + 3 उसके हिसाब से, और इसके हिसाब से भी सेम ही वैल्यू आती थी, s + 3 जो नहीं ले सकते, इसके लिए हमने रैंडम वैल्यू अज्यूम किया। इट कैन बी एनी अज्यूम वैल्यू, वॉट एवर यू वांट टू पुट यू कैन पुट इट। हाँ, यहाँ पर ऐसा है, जो हम लोग s = 4 और s = बाइनरी स्टार्टिंग में ले रहे, अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1 और 2 ले लो, अगर आप चाहो तो 1 और 2 लेके भी सम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें डिफिकल्टी क्या आएगा कि जब आप 1 और 2 लोगे तब भी आपको a, b और c 3 वेरिएबल आएंगे, और वो 3 वेरिएबल का आपको 3 इक्वेशन मिलेगा, फिर वो 3 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो डिफिकल्टी ना हो इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए, और वैल्यू डायरेक्ट ढूंढने के लिए हम लोग इसे दिस वैल्यू इक्वल टू 4, यानी जो भी यहाँ पर वैल्यू से उसके अकॉर्डिंगली पुट करते हैं, ताकि कुछ वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाए। जो वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं मिलते उसके लिए कोई भी रैंडम अज्यूम वैल्यू पुट करना है। यू गेट अ इक्वेशन, जो पता है आपको, जो वैल्यू पता होगी पहले से वो पुट कर दो, यू गेट अ फाइनल आंसर। करेक्ट एवरीवन? समझ में आया सबको? प्लीज कॉपी का पार्ट, ये वाला पार्ट कॉपी करो पहले, उसके बाद नेक्स्ट सम दे रहा हूँ सेम टाइप का, वो आप लोग सॉल्व करोगे।
सर एक डाउट है सर। देखो पुट एस इक्वल टू -3 जहाँ पे बीच में जो वो लिया अपन ने सेकंड वाला एस इक्वल टू 4 के बाजू वाला सर पुट एस इक्वल टू -3। तो सर उसके नीचे 1 इक्वल टू सी सी कैसे मिला? कैसे मिला मतलब भाई मैंने पुट किया है, तू -3 इधर पुट करेगा तो -3 + 3 0 आ गया, फिर प्लस इधर पुट किया तो ये भी 0 आ गया, प्लस सी इंटू ये अपर -3 -4 दैट इज -7, वही लिखा है मैंने। हम पुट करके जो लिख रहे हैं वो यहाँ पर मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर पुट किया तो ये मिला, वैसे हाँ सेम यहाँ पर भी पुट किया, लेकिन कुछ टर्म 0 हो रहे, इसके लिए 0 वाले टर्म नहीं लिखे मैंने, जो बाकी 0 वाला टर्म है वही लिखा था। क्लियर? हेलो? हाँ सर। ये इक्वेशन जो है यही इक्वेशन में हमें पुट करना है हर बार, जो इक्वेशन हमको मिलेगा यही इक्वेशन में आपको पुट करते जाना है। तो यही पुट करने पर आपको पहले ये मिला है, उसमें खाली ए में पुट किया क्योंकि ये बाकी सब 0 हो रहा था, तो इसके लिए ऐसा लिख सकते हो +0 +0। यहाँ पर भी इसके पहले लिख सकते हो 0 + 0 प्लस ये वाला था। तो 0 वाला लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए मैं नहीं लिख रहा उसको, दैट्स इट। जो 0 होता है उसको मैं लिखता नहीं हूँ ताकि लिखना कम हो जाए, बाकी है तो वही पार्ट जो हम लोग आगे कर रहे हैं। डन, सबका लिख कर हो गया? सर 1 मिनट सर। ठीक है, आराम से कर लो।
हाँ बोलो। सर एक 12b इक्वल टू 9/49 प्लस 4/7 माइनस कैसे आया? मैं उसका नीचे का एलसीएम कैसे लिया? ये तो इधर से आया ना 9/49 4/7, इसको ऊपर उस तरफ लेकर गया, +1 इधर आ गया तो नहीं सर वो नहीं, उसके नीचे वाला, नीचे उसके टोटल नीचे वाला। 49 लाना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाय 49 और इसको मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7। ओके सर। सर कंप्लीटेड। सबका हो गया? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आगे। एक सम मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, वो भी आप लोग सॉल्व करोगे, सेम वाला सम। 1/s + 1 s - 2 द होल स्क्वायर। ओ सॉरी, यहाँ पर s है, s/s + 1/s - 2 द होल स्क्वायर। So now in the particular part, पहला स्टेप आ जाएगा a/s + 1 plus b/s - 2 plus c/s - 2 the whole square। क्लियर एवरीवन? क्या तक समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग ले लेंगे ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको सामने सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले a इंटू ये पूरा टर्म जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो s+1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ s - 2 द होल स्क्वायर। फिर b इंटू जब ये पूरा टर्म b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक बार s -